مجھے اور ناہید کو اپنے گھر والوں سے چھپ کر شادی کرنا پڑی تھی۔ ہمارے گھر والوں کی رضامندی اس رشتے میں نہ تھی، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے اپنے محلے سے تھوڑی دور 3 کمروں کا ایک گھر لے لیا۔ میں ویسے بھی نوکری پر تھا، برسر روزگار تھا۔ ناہید کو 3 وقت کی روٹی تو کھلا ہی سکتا تھا۔ میں نے اور ناہید نے نئی زندگی کا آغاز بھی اسی 3 کمروں کے گھر سے کیا تھا، جس میں ایک باتھ روم، ایک کچن اور ایک سٹور روم تھا۔ ہمارے لیے تو ایک کمرہ ہی کافی تھا۔ باقی ایک کمرے کو ہم نے ڈرائنگ روم اور دوسرے کو ٹی وی لانچ بنا دیا کہ کوئی مہمان وغیرہ اگر خوش قسمتی سے ہمارے گھر آئے تو ہم اسے عزت سے بٹھانے کے قابل تو ہوں۔ ہم نے جس کمرے کو اپنا بیڈ روم بنایا تھا اس کی ایک طرف سٹور روم تھا، یعنی یہ سٹور روم اندر کی طرف بنا ہوا تھا اور یہ کمرہ قدرے اندھیرے والا تھا۔ یہاں سورج کی روشنی کم آتی تھی۔ میں ویسے تنہائی پسند تھا، مجھے ایسے گوشے پسند ہوتے ہیں، مگر ناہید کو یہ سب اچھا نہ لگتا۔ وہ کہتی مجھے اس کمرے میں ڈر لگتا ہے، یہاں پر عجیب و غریب سائے سے نظر آتے ہیں، تم دوسرے کمرے میں کیوں نہیں چلتے؟ وہ ہوادار بھی ہے اور روشن بھی، اس کمرے کو ہم ٹی وی لانچ بنا لیں گے۔ ویسے بھی ٹی وی اندھیرے میں بیٹھ کر دیکھا جاتا ہے، پھر ٹی وی کے ہوتے ڈر بھی نہیں لگتا۔ ناہید کی بات تو معقول تھی، مگر مجھے یہی کمرہ پسند تھا۔ بہرحال 1-2 دن ہم یہاں پر رہے، پھر ناہید نے ضد کی اور ہم لوگ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ اب یہ والا کمرہ جس میں سٹور روم بھی تھا، یہ زیادہ تر خالی رہتا تھا۔ ہمارے پاس فی الحال اتنے پیسے نہ تھے کہ گھر میں زیادہ فرنیچر ڈلوائیں، پھر یہ کرائے کا گھر تھا، یہاں پر زیادہ سجاوٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنا گھر بنانے پر یقین رکھتا تھا۔ خیر اس کمرے میں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے سامنے والوں کی چھت پر آتی، چھت پر جو کوئی بھی لڑکا لڑکی کھڑا ہوتا اسے ہمارا کمرہ بھی نظر آتا، سو ہمیں ہر وقت کمرہ بند رکھنا پڑتا۔ کمرہ کھولتے تو سامنے والوں کی چھت پر نظر پڑتی۔ یہ بات مجھے انتہائی ناگوار گزرتی، مگر میں چپ رہتا۔ لیکن اب اسی کمرے میں ہمارے شب و روز گزر رہے تھے، پر کچھ دن سے مجھے لگنے لگا تھا کہ ناہید کے رویے میں پہلی جیسی گرمجوشی نہیں رہی، وہ کچھ پریشان سی رہتی ہے۔ شام کی چائے پی کر وہ کوئی رسالہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اسے مصروف پا کر باہر سے کھانا آرڈر کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے گھر پر کھانا آ گیا۔ میں نے اور ناہید نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کافی مرغن تھا، جس کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی، حالانکہ سونے کا وقت تو نہیں تھا۔ یہ تقریباً رات کے 8 یا 9 بجے تھے۔ میں بستر پر ڈھیر ہو کر سو گیا۔ مجھے سوتا پا کر ناہید نے کمرے کی بجلی بند کر دی۔ میں بھی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں بہت جلدی سو گیا۔ اپنے پہلو پر نظر پڑی تو ناہید کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں ناہید کا انتظار کرنے لگا، مگر جب ناہید نہ آئی تو مجھے فکر مندی سی ہوئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، ناہید کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر جا کر واش روم دیکھا تو وہ واش روم میں بھی نہیں تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، مگر ٹی وی لانچ کی لائٹ آن تھی۔ میں نے سوچا یہاں دیکھ لیتا ہوں۔ تب مجھے اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ ٹی وی لانچ کے اندر سٹور والے کمرے میں ناہید موجود تھی۔ میں سٹور روم میں جا کر دیکھنے لگا۔ ناہید نے یکدم گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ ناہید، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ہنس کر، کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ تو ہے نا، کل محلے کی نادیہ کی شادی ہے اور وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ مجھے شادی میں جانا ہے اور آپ کو بھی لازمی چلنا ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم یہاں کیوں ہو؟ میرا سوال ابھی تک وہی تھا۔ میں وہی تو بتا رہی ہوں آپ کو کہ کل نادیہ کی شادی ہے۔ اپنی پسند کا ایک جوڑا ڈھونڈ رہی تھی، ہم نے آتے ہی سارا سامان ادھر پھینک دیا، پتہ نہیں میرے کپڑے کہاں گئے۔ یہ کہہ کر ناہید باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ خیر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ ناہید ابھی بھی گمسم سی تھی، لگ رہا تھا کہ اسے کوئی پریشانی ہے۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ نادیہ کے گھر شادی میں جا کر نہ جانے لوگ ہمیں کیسی کیسی باتیں سنائیں گے۔ میرا تو دل نہیں مانتا کہ میں وہاں جاؤں۔ اپنی بیوی کی یہ پریشانی میں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اپنے گھر سے بھاگنے والی لڑکی کے لیے معاشرہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، پھر اس کو باقی پریشانیاں بھی تو ہوں گی۔ بہرحال میں نے کہا کہ
कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है, लोगों की बातों से इतना घबराती हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं जानता हूँ कि अगर मोहल्ले वाले तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो कोई एतराज़ नहीं करेंगे, और फिर तुम्हारे कपड़े इतने शानदार होंगे कि उन्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि तुमने किसी गलत लड़के का इंतखाब नहीं किया। मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। मेरी बात पर नाहिद खुश हो गई। कहने लगी, कल आप शाम को जल्दी आ जाइएगा। मायूं के फंक्शन में तो मैं गई नहीं, इसलिए कि लड़कियां इकट्ठी होती हैं और बातें ज़्यादा होती हैं। कल निकाह है, आप मेरे साथ चलिएगा। बस उसकी रुखसती के बाद हम घर आ जाएंगे, 2 घंटे की तो बात है। मैंने हामी भर ली। शाम को आया तो नाहिद मुझसे पहले तैयार खड़ी थी। कहने लगी, हमें पहले ही देर हो गई है, जल्दी चलिए। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और नाहिद के साथ नादिया की शादी में शिरकत करने चला गया। हालांकि मैं इस वक्त बहुत थका हुआ था। वहां पहुंचकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई नाहिद की फ़िक्रें दुरुस्त थीं। लोग, खुसूसन के औरतें, हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे। हर एक की नज़रों में तंज और हकारत बसी थी। और फिर नाहिद से तो ज़्यादातर लड़कियां बात भी नहीं कर रही थीं। उनके कतराने का अंदाज अजीब सा था। नाहिद को सहारा देने की खातिर और ये कि उसे बुरा न लगे, मैं ख़वातीन के आसपास ही मौजूद था। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने मैं आकर देख जाता कि कहीं नाहिद रो तो नहीं रही। वो दिल की बहुत कच्ची थी। मेरे बारे में कोई बात सुनकर फ़ौरन रोना शुरू कर देती थी। इसीलिए मैं आसपास ही था। तब मैंने मुख्तलिफ औरतों को बातें करते सुना। कुछ का मौजू हम थे और कुछ का मौजू अकबर और उसकी नई बीवी थे। बहरहाल मैंने सोचा कि मज़ीद यहाँ रुकना बेवकूफ़ी होगी। मैंने नाहिद को घर चलने को कहा, मगर नाहिद अजीब सी बेचैनी का शिकार थी। लग रहा था कि वो किसी ख़ास हस्ती से मिलना चाहती है। कभी इधर जाती तो कभी उधर। उसकी निगाहें जाने अनजाने में नोट कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा नाहिद औरतों वाले कमरे से खिसक कर दूसरे कमरे में चली गई, जहाँ बूढ़ी औरतें बैठी थीं और आपस में बातें कर रही थीं। मैं नाहिद के पीछे पीछे गया। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि नाहिद एक अजीब सी बूढ़ी खातून के साथ बैठी हुई थी और उससे बड़े राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। हालांकि नाहिद को नौजवान लड़की से बात करना चाहिए थी, मगर वो बूढ़ी औरत, जिसको न नाहिद जानती थी और न शायद मैं जानता था, नाहिद उससे बड़े मज़े से बातें कर रही थी। मुझे इन दोनों का बातें करना बड़ा अजीब लगा। बूढ़ी के तेवर भी कुछ ऐसे थे कि वो मुझे कोई शरीफ घराने की औरत नहीं लगी। उसकी तेज तराज सी शक्ल और फिर बातें करने का अंदाज बड़ा ही खाक था, जैसे इसने घाट घाट का पानी पिया हो और बड़ी ही तजर्बाकार औरत हो। बहरहाल ये तो औरतों का हिस्सा था और खालिस्तन यहाँ औरतें ही थीं। मैंने आगे बढ़कर बातें सुनने की कोशिश नहीं की। वैसे भी इन छोटी बातों में पड़ना मर्द की फितरत को ज़ेब नहीं देता। घर आकर नाहिद का रोना धोना शुरू हो गया। बोली कि वहाँ पर हर औरत मुझे ताने दे रही थी, लेकिन मैं आपके साथ खुश हूँ, बस आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। शादी वाली औरतें भी कह रही थीं कि नाहिद को इतना पढ़ा लिखा और कमाऊ पूत लड़का मिल गया है, बड़ी खुशकिस्मत है नाहिद। उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ा। अरे नाहिद बेगम, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और फिर तुम क्या किसी से कम हो? तुम्हें पाकर मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने नाहिद को प्यार से समझाया तो वो मान गई, लेकिन अगले दिन से नाहिद के फिर वही तेवर थे। वो परेशान रहती और मुझसे बातें भी कम करती। उस शाम काफ़ी सर्दी हो गई थी। मैंने नाहिद को आवाज़ दी कि सर्दियों के कपड़े निकाल दो, मगर नाहिद शायद बाथरूम में थी। तब मैंने सोचा कि खुद ही जाकर स्टोर से सर्दियों के कपड़े ले आता हूँ। हम लोगों ने अपने अपने सर्दियों के कपड़े स्टोर रूम में रखे थे। टीवी लॉन से होता जब स्टोर रूम में पहुंचा तो नाक पर हाथ रखना पड़ा, क्योंकि वहां पर इंतहाई नागवार बदबू आ रही थी, जिससे यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये बदबू इतनी नागवार और तेज किस्म की थी कि मैं वहाँ एक लम्हा न टिका और वापस अपने कमरे में आ गया। नाहिद का इंतज़ार करने लगा। नाहिद आई तो मैं उस पर खफा होने लगा। नाहिद, हमारा घर ही कितना सा है, एक तुम और मैं ही तो इस घर में रहते हैं, और फिर तुम्हारे पास और कोई काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम घर का ख्याल नहीं रखती। देखो स्टोर रूम से कितनी सख्त बदबू आ रही है। तुम्हें कोई एहसास है कि आने वाले पर कितना बुरा असर पड़ेगा? मेरी बात सुनकर नाहिद शर्मिंदा हो गई। बोली, आप फिक्र ना करें, मैं इस स्टोर रूम को खुद ही कल या परसों तक साफ कर दूंगी। देखूंगी कि बदबू क्यों आ रही है। हो सकता है कि कोई जानवर मरा पड़ा हो, मतलब चूहा या छिपकली वगैरह।
इसीलिए बदबू आ रही होगी। नहीं नहीं, तुम अकेले मत साफ करना, मुझे भी बुला लेना, हम मिलकर साफ करेंगे, मैंने नाहिद को खुशदिली से कहा। बज़ाहिर नाहिद को मेरी बात पर कोई एतराज़ नहीं था। उसने स्टोर रूम की सफाई करवाने का वादा किया, लेकिन 2 दिन बाद मैं वैसे ही फिर उधर गया तो वही बदबू अभी तक आ रही थी। नाहिद पर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने सोचा कि इसे थोड़ी सी शर्म दिला दूं। अभी स्टोर रूम की लाइट ऑन करके खुद सफाई करने ही लगा था कि दौड़ी दौड़ी नाहिद आ गई। मेरा हाथ थामकर प्यार से बोली, आप ये काम क्यों करते हैं असगर? मैं हूँ ना, सफाई सुथराई के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे एक दिन और दे दें प्लीज़। आज मुझे सफाई करने वाला केमिकल नहीं मिल रहा था। कल जाऊँगी ना बाज़ार से ले आऊँगी तो सारा घर चमका कर रख दूँगी। उसके बगैर सफाई करना मुमकिन नहीं है। नाहिद की बात भी सही थी। मैंने तो उसे सफाई के लिए कुछ ला कर ही ना दिया था, उल्टा मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हो गया। बहरहाल मैं काफ़ी थका हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत में बोझलपन सा आने लगा। तब नाहिद बोली कि मैं आपके लिए दूध का गिलास ले आती हूँ, हल्दी वाला दूध पीकर आपको आराम आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दूध का गिलास पीकर मुझे सख्त नींद आने लगी। मैं नींद में कब खोया याद ही नहीं रहा। दरमियान में मेरी आंख एक बार खुली। नाहिद कमरे में नहीं थी। मैंने उसे आवाज़ दी मगर वो मुझे नहीं मिली। मैं उठकर जाना चाहता था कि देखूं नाहिद क्या कर रही है, मगर मुझे दोबारा नींद आ गई, इसलिए उसके पीछे नहीं जा सका। सुबह आंख खुली तो तबीयत बोझल सी थी, दिल पर एक बोझ सा था और नींद भी पूरी न हुई थी। हालांकि मैं सारी रात सोया रहा मगर अजीब सी थकन मेरे जहन पर तारी थी। मैंने नाहिद को आवाज़ दी मगर नाहिद ने मेरी बात न सुनी। काफ़ी देर में बिस्तर में लेटा उसका इंतज़ार करता रहा कि आए तो नाश्ते का कहूँ, मगर नाहिद बेगम का तो नामो निशान नहीं था। मुझे फिक्र हुई। उठकर देखा तो नाहिद किचन में भी लॉन्च में गया, मगर उसी वक्त स्टोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो नाहिद ने स्टोर रूम में बंद होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर नाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे गुस्सा आ गया। नाहिद, पागल हो गई हो क्या? दरवाज़ा खोलो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये नखरे मुझे हर वक्त मत दिखाया करो। मेरी आवाज़ बुलंद हो रही थी मगर नाहिद पर कोई फ़र्क न पड़ा। उसने दरवाज़ा नहीं खोलना था सो ना खोला। काफ़ी देर के बाद जब दरवाज़ा पीट पीट कर थक गया तो उसकी मरियल सी आवाज़ अंदर से सुनाई दी, असगर मुझे तलाक दे दो, तभी दरवाज़ा खोलूँगी वरना यहीं मर जाऊँगी। तुम ये क्या कह रही हो नाहिद? मैं तुम्हें कैसे तलाक दे सकता हूँ? तुम होश में तो हो? मैंने सर पकड़ लिया। उफ खुदाया, नाहिद तुम्हें हो क्या गया है? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि तुमने इतनी बड़ी बात कह दी? तुमने तो सब कुछ ख़त्म ही कर दिया। मैं नाहिद से गिले शिकवे करने लगा मगर नाहिद का गुस्सा लम्हा बलम्हा बढ़ता गया। बोली कि अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं इसी कमरे में गल सड़कर मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से ना निकलूंगी। अब मुझे नाहिद पर गुस्सा आने लगा। नाहिद, तलाक तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये दरवाज़ा तोड़कर जब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा तो तुम्हारा बुरा हशर करूँगा और तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। मैंने नाहिद को धमकाया भी मगर उस पर किसी बात का असर न हुआ। फिर आखिर वही हुआ जिसका डर था। मैं बाज़ार गया और वहाँ से एक मिस्त्री को ले आया। मिस्त्री साहिब हमारे मोहल्ले के ही थे। जल्दी में किसी और को नहीं ढूंढ सकता था। वो मेरे साथ मेरे घर आए। मैंने उन्हें कहा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है, आप कुछ करें और इसे खोल दें। मैंने नाहिद का जिक्र तो नहीं किया था मगर अभी वो दरवाज़ा खोलने में मसरूफ़ ही थे कि नाहिद चीखने चिल्लाने रोने पीटने लगी। वो भी समझ गए कि कोई मामला हुआ है। उनके चेहरे के तासुरात देखकर मैं जान गया था कि मेरी इज्जत अब पूरे मोहल्ले में बिखर चुकी है। कोई फ़ायदा न था कोई बात छुपाने का। मैंने कहा, नाहिद बिला वजह की ज़िद कर रही थी, इसीलिए आपको बुलाया। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था उनके सामने। खैर थोड़ी देर के बाद किसी तरह दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा नाहिद सर पकड़े अंदर बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके गालों पर लकीर सी बना रहे थे। मुझे उस वक्त उसकी हालत ऐसी न लगी कि मैं उससे लड़ाई झगड़ा करूं या किसी भी किस्म का सवाल जवाब करूं, उससे पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे स्टोर से बाहर लाकर कमरे में बिठाया, पानी लेने गया। वापस आकर देखा तो नाहिद बेहोश हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत रहम आया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था
मगर अभी कुछ भी करना ठीक नहीं था। मैं भी आराम से बैठ गया कि नाहिद को खुद ही जब अक्ल आएगी तो मुझे बता देगी कि मसला क्या है। मगर ऐसा मेरी खुशफहमी ही थी। नाहिद तो दिन ब दिन मुझसे लड़ाई झगड़े बढ़ाने लगी। मैं उससे कोई बात करता तो खाने को दौड़ती। मुझे इस परेशानी ने आधा कर दिया। मैं अपने ऑफिस में काम पर ध्यान न दे पाता, जबकि नाहिद का रवैया अजीब से अजीब तर होता जा रहा था। अलबत्ता कभी कभी वो बहुत प्यार से बात करती, ऐसे जैसे उसे पिछली किसी बात की खबर ही ना हो। ये रवैया भी तकलीफ दे था। पता ही ना होता कि कब नाहिद का मूड बिगड़ जाए और कब वो तलाक की रट लगा दे। अभी तक हमारे बीच इस बात पर कई बार तकरार हो चुकी थी। नाहिद ने घर के काम भी छोड़ दिए थे। खाना मैं बाहर से ले आता और मेरी बेजारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मुझे अपने सारे काम खुद ही करना पड़ते। नाहिद का वजूद घर में बेकार सा होकर रह गया था। वो उल्टा मेरा दिमाग खाती और मुझे परेशान की ढूंढने स्टोर रूम में गया तो देखा कि ज़मीन पर कागज़ के टुकड़े पड़े थे। मैंने उन कागज़ के टुकड़ों को उठाकर देखा तो वो किसी किस्म के तावीज़ थे जिन पर आड़ी तिरछी लकीरें लगी हुई थीं, जबकि एक तावीज़ पर मेरा और नाहिद का नाम लिखा हुआ था और कुछ अजीबोगरीब आदाद और हुरूफ भी थे। मैंने वो कागज़ जेब में डाल लिए। मैं समझ गया था कि नाहिद अब किन चक्करों में पड़ गई है। एक मुफ्ती साहिब मेरे जानने वाले थे। मैंने सोचा कि इसके लिए मैं उन्हीं से मशवरा करूं तो बेहतर होगा। शाम को अपने कामों से फारिग होकर मैं मुफ्ती अब्दुल रहमान के पास पहुंचा तो बड़े दिनों बाद मुलाकात करके वो भी खुश हुए। मैंने उन्हें अपनी शादी का बताया और फिर ये सारा किस्सा भी उनके सामने बयान कर दिया। मेरी बात सुनकर वो किसी सोच में गुम हो गए। बोले, क्या तुम अपनी बीवी को तवज्जो नहीं देते या तुम दूसरी औरतों में दिलचस्पी तो नहीं रखते? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वक्त पर घर आता हूँ, ख्याल रखता हूँ उसका। तो फिर वो तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए तावीज़ें हुब क्यों कर रही है? मुफ्ती साहिब की बात ने मुझे हैरान कर दिया। गोया शादी वाले घर में बातों का नाहिद ने अपने सर पर कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया। मुझे अपने पास बांधे रखने के लिए वो इन चक्करों में पड़ गई। खैर, मौलवी साहिब के कहने पर मैंने कुछ वज़ाइफ वगैरह करना शुरू किए। नाहिद को भी नमाज की पाबंदी करवाई। उस पर बाकायदा सख्ती शुरू कर दी, क्योंकि नमाज के मामले में मैं खुद भी बहुत सख्त था। अलबत्ता अब नमाज की पाबंदी पहले से ज़्यादा करना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों के बाद हमारे हालात सुधरने लगे। नाहिद का रवैया बेहतर होता गया। बिलाखिर उसने मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी और इस हकीकत का भी एतराफ़ किया कि मेरी मोहब्बत पाने के लिए उसने ये सब किया और ये कि वो मुझे खोने से डरती थी। फिर मैंने उसे मुफ्ती साहिब के ज़रिए समझाया कि इंसान को कभी भी अपने हाथ में कुदरत के फ़ैसले लेने की दिल अल्लाह के हाथ में होता है। तुम अल्लाह को राज़ी करोगी तो वो हम दोनों को एक दूसरे से राज़ी रखेगा। इस बात ने हमारी ज़िंदगी खुशगवार बना दी। आज भी लोगों का यही यकीन है कि नाहिद ने मुझ पर कोई तावीज़ करवाए हैं, क्योंकि नाहिद की माँ के बारे में ऐसी ही बातें मशहूर थीं। जबकि मैं समझता हूँ नाहिद और मेरे दरमियान सिर्फ मोहब्बत और रज़ा का तावीज़ है।